Today we will start our session from pollination. In the process, in the preceding session, you have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. As both type of gametes are non-motile, ये याद रखिएगा, both type of gametes are non-motile. They have to brought together for fertilization. Pollination क्या? Pollination is a mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain seed from anther to the stigma of a pistil termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. They make use of external agent for pollination. Kind of pollination, कितने तरह के pollination होते हैं? Depending on source of pollen, pollination can be divided into 3 type. मतलब source of pollen के अनुसार कितने तरह के होते हैं? एक होता है ऑटोगेमी और दूसरा क्या होगा हमारा? एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा जिटनोगेमी और दूसरा जीनोगेमी. देखिए ऑटोगेमी क्या होता है? In this type pollination is achieved within the same flower. Within the same flower मतलब एक ही फ्लावर में, जैसे यदि एक ही फ्लावर है ये, तो एक ही फ्लावर में क्या होगा हमारा? एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसमें क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और इसमें क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा. यानी ऑटोगेमी मतलब सेम में, ऑटो का मतलब सेम में हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर विद इन द सेम फ्लावर. ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर किसमें होता है? Transfer of pollen grain from stigma to the same flower. In a normal flower which opens and exposes, the anther of the stigma complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. तो देखिए क्या होता है कि यदि फ्लावर ओपन है तो क्या होना चाहिए कि स्टिग्मा और हमारा मेल पार्ट है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का दोनों का एक ही समय पर मैच्योर होना जरूरी है. और यदि ओपन नहीं है तो, और यदि क्लोज है, हमारा फ्लावर क्लोज है तो उसमें ये दिक्कत नहीं है, वो उसमें हमेशा क्या होगा? ऑटोगेमी होगा. यदि क्लोज फ्लावर है तो उसमें हमेशा क्या होगा? ऑटोगेमी ही होगा. यदि ओपन फ्लावर है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसमें क्या हो सकता है? ऑटोगेमी हो सकता है, जीनोगेमी भी और जिटनोगेमी हो सकता है, तीन हो सकता है. Some plants such as viola, some plants such as viola, common pansy, जिसको common pansy भी कहते हैं, viola oxalis and commelina, produce two type of flower, chesmogamous. इनमें chesmogamous में होता है clistogamous. chesmogamous का मतलब होता है open flower. ओपन फ्लावर क्या कहते हैं? चेस्मोगामस. क्लिस्टोगेमस होगा तो क्लोज. CL, क्लिस्टोगेमस की शुरू होता है CL से, और CL से भी क्या होता है? क्लोज भी शुरू होता है. तो क्लोज और क्लिस्टोगेमस दोनों क्या होंगे? सेम. Two type of flower which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma. Exposed anther and stigma यानी open type. Exposed anther मतलब बाहर खुले रहेंगे. और क्लिस्टोगेमस in such flower the not open at all. In such way do not open at all. इसमें ओपन नहीं होगा. जैसे यहाँ पे देखिए क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर दिया है, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, और चेस्मोगेमस यानी यहाँ पे ओपन हो चुका है. और ये भी क्या है? चेस्मोगेमस. और इस क्लोज फ्लावर में क्या होता है कि स्टिग्मा इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, ताकि पोलिनेशन आसानी से हो सके. व्हेन एंथर dehiscence in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus clistogamous flower are irreversibly autogamous as there are no chance of cross pollination. इसमें क्या होता है कि no chance of cross pollination होता है, और इसमें क्या होता है? invariably autogamous, मतलब इसमें क्या होगा? केवल autogamous ही होगा, और no chance of cross pollination. Clistogamous flower produce assured. क्लिस्टोगेमस में क्या होगा हमारा? क्लिस्टोगेमस है, उसमें क्या होगा? assured pollination, मतलब assured करेगा कि हाँ इसमें होगा ही होगा. assured seed set even the absence of pollinator. assured seed set in the even absence of pollinator. यानी क्लिस्टोगेमस यदि क्लोज फ्लावर है तो इसमें पोलिनेटर कभी इंटर ही नहीं कर पाएगा. तो इंटर नहीं कर पाएगा तो पोलिनेशन कैसे होगा? अपने आप ही होगा. क्लिस्टोगेमस एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? कुछ पॉइंट में एडवांटेज भी है और कुछ पॉइंट में डिसएडवांटेज है. जिटनोगेमी, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant. जिटनोगेमी किसे कहेंगे? जिटनोगेमी सेम यदि किसी प्लांट का हम रेफरेंस लेंगे तो जिटनोगेमी क्या है? जिटनोगेमी भी एक ऑटोगेमी है. किसी प्लांट का हम लोग रेफरेंस लेंगे, मतलब इस प्लांट में कैसा हो रहा है? ऑटोगेमी. लेकिन उस प्लांट के उस फ्लावर में कैसा होगा? जिटनोगेमी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ another flower but same plant होना चाहिए, उसी प्लांट का another flower.
ऑल्सो जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, मतलब फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है जिसमें एक पोलिनेटिंग एजेंट होता है बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर, मतलब जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। यानी यदि हम प्लांट का रेफरेंस ले रहे हैं तो ये ऑटोगेमी है, लेकिन फ्लावर का व्यू अब देख प्लांट फ्लावर का व्यू लेंगे तो ये क्या होगा, जिटनोगेमी। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफिस में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होगा। ये जेनेटिकली और फंक्शनली सभी तरह से ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, इसमें सभी तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन, चाहे इसमें जेनेटिकली का हो या फिर फंक्शनली, सभी तरह से क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, प्लांट यूज टू एबायोटिक, ये मतलब एबायोटिक में क्या कहेगा, जो जीवित नहीं है, जैसे वाटर, विंड। और बायोटिक में क्या होंगे, एनिमल्स में क्या हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, बी बर्ड्स हो सकती हैं, बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, इवन इंसेक्ट भी होते हैं। मेजोरिटी में क्या है, बायोटिक एजेंट्स। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate this for uncertainties and associated loss of pollen, the flower produce enormous plant. मतलब यदि क्या होगा, जिसमें विंड और वाटर से यदि पोलिनेशन होगा तो उसमें पोलिनेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन रिलीज होता है, मतलब बहुत सारा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोलन रिलीज होगा। यदि ऐसे समझे, ओव्यूल यदि कुछ है, यदि एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल, यदि ओव्यूल कुछ मात्रा में है तो उसके अपेक्षा में पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा होता है। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पोलिनेशन। एबायोटिक में विंड क्या है, मोस्ट कॉमन है। विंड और वाटर में, एयर एंड वाटर में मोस्ट कॉमन क्या है हमारा, एयर। विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट। विंड पोलिनेशन में क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, विंड पोलिनेशन के लिए मार्क करेंगे। विंड पोलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन के सामने लाइट और नॉन स्टिक होना चाहिए, एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद विंड करंट। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टामेन, और वो क्या करते हैं, वेल एक्सपोज स्टामेन होते हैं, ताकि जैसे बाहर यदि निकला रहेगा तो आसानी से क्या करेगा, हमारे पोलन ग्रेन को पकड़ लेगा, इसीलिए वेल एक्सपोज यानी बाहर निकला होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट एंड ए लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा एट द टिप ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, और विंड पोलिनेटेड फ्लावर में अधिकतर क्या होते हैं, सिंगल ओव्यूल होते हैं इन ईच ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू एन इनफ्लोरेसेंस एज फैमिलियर एग्जांपल ऑफ द कॉर्न। जैसे कॉर्न देखिए, मतलब मक्का में हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, कॉर्न का टेसल्स यू सी नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ऐसे होता है हमारा कॉर्न, कैसे होता है, ऐसे होता है ना, और वहाँ पे ऐसे हमारे निकले हुए होते हैं, ये टेसल्स निकले हुए होते हैं। ये टेसल्स निकले होते हैं क्या होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। टेसल्स यू सी नथिंग स्टिग्मा एंड स्टाइल। व्हिच आर द वाइन पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। व्हाइट पोलिनेशन किसमें कॉमन है, ग्रासेस में। ग्रासेस में सबसे ज्यादा क्या कॉमन है, वाइन पोलिनेशन, उसमें अधिकतर देखने को मिलता है। विंड पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। ये पोलिनेशन बाय वाटर क्या है, रेयर है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा। ये कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम 30 जनरा तक है। मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, मोस्टली वाटर से होता है। मोनो में क्या होता है, वाटर से होता है। एंड अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी। जैसे देखिए एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इस सब में पोलिनेशन किससे होता है, वाटर से होता है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इस समय क्या होता है, पोलिनेशन बाय वाटर। एबीपी, ए बी एंड पी, एबीपी में क्या होता है, वाटर से। It is believed particularly for some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of need of water for transport. मतलब पोलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत है, इसीलिए इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, यानी इनकी जनसंख्या क्या है, कम है। Some example of water pollinated plants are, वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, which grow in fresh water, कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में। And several marine sea grasses such as zoestra, ये सभी क्या होते हैं, वाटर से होते हैं। Not all, ये याद रखिएगा, not all aquatic plants यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई प्लांट पानी में है फिर भी वो क्या कर रहा है, तो हमेशा वाटर ही वे चुनेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, एयर वे होता है, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे उसका।
Yes, majority of aquatic plants such as water hyacinth, majority of aquatic plants such as water hyacinth, water lily, flower emerges above the level of water and pollinated by insect और wind। याद रखिएगा, जिसका भी नाम वाटर से चालू हो रहा है वो वाटर से नहीं पोलिनेट होगा, किसी से पोलिनेट होगा, या तो इंसेक्ट से पोलिनेट होगा या फिर as most of the land plant in Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by long stalk। इसमें क्या होता है, लॉन्ग स्टॉक होता है। and the male flower pollen grain are released on the surface of water। मेल फ्लावर, इनमें क्या होता है, मोड ऑफ पोलिनेशन, इनमें मोड ऑफ पोलिनेशन ऑफ Vallisneria में मोड ऑफ पोलिनेशन क्या होता है, वाटर। they are carried passively by water current। some of them eventually reach the female flower and stigma in another group of water pollination plants such as sea grasses। और कुछ वाटर पोलिनेटेड प्लांट जैसे हैं सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज। फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अंदर होते हैं, और पोलन, जैसे यहाँ पे पानी का लेवल है तो पानी के लेवल पे क्या होगा कि पोलन ग्रेन रिलीज होगा, पोलन नीचे डूबते जाएगा और नीचे जो फ्लावर है उस पे जाके वो लैंड कर जाएगा। पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द stigma and achieve pollination। In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by miscellaneous covering। जो भी वाटर होते हैं उसमें का वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज में क्या होता है, उसमें मिसलेनियस की कवरिंग होते हैं ताकि वो पानी से भीगे नहीं, पानी से वाटर से भीगे नहीं, वेट नहीं करे, वाटर से वेट नहीं करे, इसलिए लिखा होता है मिसलेनियस कवरिंग होती है यहाँ पे। बोथ विंड और वाटर प्लांटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। जो विंड और वाटर प्लांटेड फ्लावर होते हैं वो उतने मतलब कलरफुल नहीं होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस, और उनमें नेक्टर नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो भी होता है, कलर हो गया, स्मेल हो गया, या फिर जैसे हम ऑर्डर करते हैं, या फिर जो नेक्टर हो गया, ये किसके लिए होता है, पोलिनेटिंग, बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट के लिए। बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट को मतलब यदि आप किसी से काम कर रहे हैं तो उसको बदले में उसको कुछ देना ही पड़ेगा। तो जब ये सब इंसेक्ट से पोलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट से जब हम सभी लोग इंसेक्ट से पोलिनेशन कराते हैं तो क्या होता है, इनको बदले में कुछ देना पड़ता है। तो ये क्या देंगे, या तो देंगे ये, या तो वो अपने मतलब सेंट से उसको अट्रैक्ट करेंगे, या फिर उसको खाना वाला देंगे, क्या देंगे, नेक्टर देंगे, या फिर उसको कलर से अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके जो ऊपर बताया गया उसी का दिखाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि मेल क्या कर रहा है, यह है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा कहाँ पे सरफेस पे आ गया है, और ये फ्लावर, फीमेल फ्लावर जो सरफेस पे आ गया क्यों, पोलिनेशन करने का। यहाँ पे क्या होगा, पोलन रिलीज होगा और ये वाटर के साथ जाएगा और यहाँ पे पोलिनेट करेगा। अब देखिए हम लोग बायोटिक देखेंगे। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करेंगे, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट। बी बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंगबर्ड एंड बैट आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बर्ड। इंसेक्ट में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अमंग द इंसेक्ट, अमंग द एनिमल में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा है तो क्या है, इंसेक्ट, क्या है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा क्या होगा, बी। एनिमल में सबसे ज्यादा इंसेक्ट और इंसेक्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा, बी। इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स एंड एर्बोरियस, मतलब जो प्लांट पे रहते हैं, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, they have been reported as pollinating agent in some species. Often flower of animal pollinated plants are especially adapted for a particular species of animal. Majority of insect pollinated flower are large. जो majority में होते हैं क्या होते हैं, large होते हैं, large, colorful, fragrant and rich in nectar होते हैं। क्यों होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। When flower are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous। यदि फ्लावर लार्ज नहीं है, छोटा है, तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्लावर मिल जाएंगे तो ऐसे क्या लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा फ्लावर है। Animals are attracted to the flower by color and fragrance। Animals किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर by color and fragrance, कलर से और सेंट से। The flower are pollinated by flies and beetle are secret fall, मतलब जो बिल्कुल ही गंदा मार्ग देते हैं वो किससे पोलिनेट होते हैं, फ्लाई, मधुमक्खियों से और बीटल से। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। दो रिवार्ड क्या हैं, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर फ्लोरल reward. For harvesting, the reward from the flower to the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. The body of animals get coated of pollen grain। मतलब यदि ऐसा नहीं है, यदि ये रिवार्ड दे रहे हैं तो इसके बदले में मतलब हम मेरा काम हो इसको निश्चित करने के लिए क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है इनके पैर में कभी कभी चिपक जाता है, इनके बॉडी पे चिपक जाता है, ताकि यदि दूसरे फ्लावर पे जाएं तो इनके इस बॉडी पार्ट से क्या हो, वो फ्लावर पोलिनेट हो जाए। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटेड बाय पोलन ग्रेन्स व्हिच आर generally stick to the animal
pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. In some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. और कुछ कंडीशन में फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है कि वो जगह देते हैं। जगह यदि फ्लावर बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, वो जगह देंगे ताकि वो अपने को जो इंसेक्ट मतलब जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या करे, अपना वो एज ए होम यूज कर सके। As an example of tallest flower of Haemophilus, the flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between the species of moth and yucca plant. Moth and yucca plant में क्या होता है, मतलब moth क्या करता है, उसके युका प्लांट में क्या करता है, अपना घर बनाता है, मतलब एग ले करता है। और मोथ और युका प्लांट के बना दोनों अपना लाइफ साइकिल, मतलब जो भी उनका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यानी यदि हम लोग मोथ को मार देंगे तो युका प्लांट भी क्या हो जाएगा, अपने आप डाई कर जाएगा, और युका प्लांट को मार देंगे तो मोथ भी अपने आप डाई कर जाएगा। तो मोथ deposits egg in locule of the ovary and the flower in turn get pollinated by moth. The larva of moth come out of the egg as seed start developing. ये सब इतना जरूरी नहीं है, ये सब इतना जरूरी नहीं है। अपना कहते हैं outbreeding devices. Outbreeding devices. Majority of flowering plant produce hermaphrodite flower and the pollen are likely to come in contact with the stigma of same flower. hermaphrodite का मतलब homosexual, HMB नहीं, hermaphrodite का मतलब होता है bisexual, monoecious या hermaphrodite, तीनों एक ही होते हैं। hermaphrodite, bisexual और monoecious. Continuous self pollination result in inbreeding depression. याद रखिएगा। Flower plants have developed many devices for discourage self pollination and encourage cross pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. उस पहला क्या है कि दोनों का मैचुरेशन एक साथ नहीं होगा। और देखिए दूसरा मतलब either the pollen is released before the stigma in some other species. दूसरा देखिए ये है, ये हमारा है पहला, और यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा। In some other species the anther and the stigma are placed at different position in the pollen in so that मतलब कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि दोनों अलग अलग जगह होते हैं ताकि pollen वहाँ पे पहुंच नहीं पाए। Both of these devices prevent autogamy. दोनों क्या करते हैं, prevent autogamy. The third, तीसरा भी है, क्या है the third device to prevent inbreeding is self incompatibility. self incompatibility का मतलब क्या होगा ना, ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा अपने ही फ्लावर के एंथर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपने ही फ्लावर के एंथर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है, इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर, या तो सेम फ्लावर हो या फिर सेम प्लांट का फ्लावर हो, तो उसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। वो कैसा फ्लावर होना चाहिए, एक प्लांट का होना चाहिए स्टिग्मा, एक प्लांट का स्टिग्मा होता है और दूसरे प्लांट का होना चाहिए पोलन होना चाहिए हमारा, तभी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अनदर डिवाइस, और एक दूसरा डिवाइस क्या है, अनदर डिवाइस क्या है कि वो फ्लावर ही क्या हो, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक फ्लावर में या तो उसमें मेल पार्ट हो या फिर और दूसरे फ्लावर में क्या हो, फीमेल पार्ट हो। मतलब हम लोगों ने कितने देख लिया, 4 देख लिया, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, तीसरा और चौथा यहाँ पे। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज केस्टर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल याद करना। इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट सच एज केस्टर एंड मैज मोनोइसियस टू प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। मतलब एक ही फ्लावर पे होते हैं, मतलब मोनोइसियस होते हैं, मतलब एक ही प्लांट पे क्या हो, दोनों फ्लावर होंगे। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल क्या होंगे, दोनों अलग अलग प्लांट पे होंगे। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, डायोसियस, इसको क्या कहेंगे, डायोसियस। दिस कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, ये दोनों को प्रिवेंट करता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन जैसे यदि स्टिग्मा पे हो, मतलब ये पोलन है, ये किससे कैसे मतलब अटैच होगा इससे। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ right type of pollen. Often pollen of wrong type either from the other species or from the same plant. It is self-incompatible. So also land on stigma. मतलब दूसरे species का भी या फिर दूसरे plant का भी वो stigma पे land कर सकता है। The pistil has ability to recognize the pollen whether it is of right type compatible or it is of wrong type incompatible. If it is of right type, the pistil accept the pollen. If it is of right type,
द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ये सब जो ये फिगर है पोस्ट फर्टिलाइज मतलब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है। पोस्ट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने से पहले और पॉलिनेशन होने के बाद है ये सब, अभी हम लोग देखेंगे। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइम द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन एंड प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द style. The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection in the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by chemical components. ये डायलॉग मतलब एक्सेप्ट करने का डायलॉग किसके द्वारा मेडिएट किया जाता है? केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। मतलब क्या होगा कि एक जो पोलन है हमारा, पोलन में एक तरह का केमिकल है, समझे यहाँ पे केमिकल है, और ये हमारा जो पिस्टिल है, पिस्टिल में भी एक तरह का केमिकल होगा। ये दोनों यदि आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी क्या होगा? मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा। इट इज ओनली द रिसेंट ईयर दैट द botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection. As mentioned earlier, the following देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि पॉलिनेशन हो गया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, पिस्टिल के द्वारा यदि एक्सेप्टेंस हो गया पोलन ग्रेन का, तो अब क्या होगा? पोलन ट्यूब हमारा ग्रो करता है। क्या करता है इसके अंदर? स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच टू द ओवरी। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलन ग्रेन आर सेड एट टू सेल कंडीशन। ये वेजिटेटिव हम लोग देखा था टू सेल, कुछ प्लांट में क्या होता है कि ये टू सेल कंडीशन में रहता है। एक होता है वेजिटेटिव और एक होता है जनरेटिव। जनरेटिव क्या होता है? जैसे बड़ा सा सेल होगा, इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव सेल पूरा होगा और इसके बीच में क्या होगा? एक जनरेटिव सेल होगा। लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है कि जेनेटिव सेल, कुछ प्लांट में क्या होता है? जेनेटिव सेल में डिवाइड करता है और वो दो बना लेता है। इन सच प्लांट जेनेटिव सेल डिवाइड एंड जिसमें दो सेल स्टेज में होता है उसमें क्या करता है? द जेनेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। मतलब जैसे ही पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है उसमें क्या होगा? उसमें वो डिवाइड कर जाएगा और दो जनरेटिव सेल बना लेगा। इन प्लांट विच सेड ऑन थ्री सेल, जिसमें थ्री सेल कंडीशन पे होते हैं, द पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। पोलन ट्यूब में क्या होगा? दो मेल गैमेट ही होगा, उसमें वेजिटेटिव सेल नहीं होगा। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। इसके द्वारा इंटर करता है माइक्रोपाइल के द्वारा, जहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो एक सेल था वहाँ पे क्या था? सिनर्जिड था, और बीच में एक था यहाँ पे पोलर, दो पोलर न्यूक्लियाई थे और यहाँ पे एंटीपोडल सेल था, ऐसे था। तो यहाँ से वो इंटर करेगा एंड इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड। और किसमें करेगा? इंटर्स वन ऑफ द किसी एक में होगा थ्रू फीलिफॉर्म एपरेटस। मतलब थ्रू फीलिफॉर्म एपरेटस यहाँ पे जो एक्सटेंशन था उसके थ्रू क्या होगा? किसी एक में एंटर करेगा और वहां से एक में चला जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। दो फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी एक में। मेनी रिसेंट स्टडी हैव शोन दैट फीलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ। ये जो फीलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है? ये guide the entry of pollen tube. All these events from the pollen deposition and stigma until the pollen tube enter into ovule are together known as pollen pistil interaction। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जैसे स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद और फर्टिलाइजेशन होने से पहले, ये सब क्या कहेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहेंगे हम लोग उसे। As mentioned earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition। डायनामिक मतलब दो तरह का हमारा, एक तो रिकॉग्निशन हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बाई प्रोमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन, उसके बाद वो प्रमोट करेगा। ये सही तरह का है कि गलत तरह का है? द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प यू। देखिए और आगे देखते हैं। आगे द ब्रीडर इज इंसर्टेड इन अ क्रॉसिंग प्लांट स्पीशीज ऑफ often genera to combine desired artificial hybridization। इसे हम क्या कहेंगे? मतलब डिजायर मतलब अपने अनुसार, यदि अपने अनुसार दो स्पीशीज को फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो उसका कहेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वन ऑफ द मेजर प्रोसेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट बनाए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। आगे देखते हैं। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम, यदि किसी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही मतलब उसमें एक ही हो, मतलब एक ही तरह, या तो उसमें फीमेल हो या फिर उसमें मेल हो। यदि बाइसेक्सुअल है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? शुरुआत से या तो मेल पार्ट को हटा लेंगे या फिर फीमेल पार्ट को हटा लेंगे। उसी में क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बोथ बाइसेक्सुअल रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर एंथर देयर यूजिंग पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। मतलब मेल वाले पार्ट को हटा लेना ही क्या होता है? इमैस्कुलेशन।
इमेस्कुलेशन फ्लावर हैव टू कवर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं बैग से। सुटेबल साइज जनरली मेड अप किससे बनाता है, बटर पेपर। जनरली किससे बना रहेगा, बटर पेपर से बना रहेगा। जनरली मेड अप बटर पेपर to prevent combining of stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. When stigma is bagged, flower attains the receptivity. Mature pollen grain collect from the anther of male. देखते हैं, if the female parent produce unisexual flower, there is no need of emasculation. उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग केवल बैगिंग करेंगे। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल बैगिंग करेंगे, उसमें इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे। नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन।